Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with final accounts. In today's class, we are going to solve a full-fledged question of final accounts, wherein we shall prepare trading and profit and loss account along with balance sheet. So in this question 12, it's a full-fledged question. We shall prepare trading and profit and loss account and balance sheet. Okay. So in the exam, you can expect this type of questions, right? Full-fledged questions of final accounts. Let us discuss the question. The following is a schedule of balances as on 31st March 2022, extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on business under the same name and style of Messrs. Gavaskar Vishwanath and Company. So what is the name of the proprietor? Sri Gavaskar. And what is the name of the business entity? Messrs. Gavaskar Vishwanath and Company at Mumbai. Okay. So क्या लगता है ये जो शेड्यूल अपने को दिया हुआ है, this schedule is exactly what? The schedule of balances where you have the name of the ledger accounts and debit and credit balances. So what exactly is this? This is the schedule is nothing but a trial balance, right? So here in the schedule, you find the list of all the ledger account with their respective debit balance or credit balance, which is nothing but a trial balance. So a trial balance is given, and look, total किया है 47,22,000, debit balance total, credit balance total, ठीक है. So below trial balance, there are additional information 1 to 6. So question ka requirement is prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as at that date after making provision for the following. Okay. Provision for the following means after taking into account the following information. So 1 to 6 is what? Additional information, which we also call as adjustments, right? Adjustments का फाइनल अकाउंट्स में कितने जगह इफेक्ट आएगा? टेल मी. दो जगह इफेक्ट आएगा. हो जाएगा सर। दो जगह इफेक्ट आएगा, ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन को, अब देखो फाइनल अकाउंट्स का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करने का अपना एक अप्रोच है, ठीक है. अप्रोच क्या है? सबसे पहले सुनो कि हम लोग कॉपी का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो अगल बगल पेजेस को लेंगे, ठीक है. समझ में आया? यानी कॉपी का दो अगल बगल पेजेस को लेना है, पेजेस फेसिंग ईच अदर, नॉट आगे पीछे, राइट? यू अंडरस्टूड ना? यस सर। ठीक है. सो दिस इज योर कॉपी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पेज एंड दिस इज राइट हैंड साइड पेज. फ्रंट एंड बैक नहीं लेना है, आसपास लेना है, राइट? सो अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पेज में वी शैल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ trading and profit and loss account, and on the right hand side page we shall draw the balance sheet, format of balance sheet. ठीक है. ये आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपने एक तरीके से, एक मेथड से, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे टू सॉल्व दिस फुल फ्लेजेड क्वेश्चन. तो एक एक पॉइंट को ध्यान से मन लगाकर सुनना,
क्योंकि जो भी मैं कहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि जो प्रोसीजर हम सीखेंगे आज क्लास में टू सॉल्व अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये सेम प्रोसेस से अगर अपने कोई भी फाइनल अकाउंट्स का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट टैली करेगा एंड हमारा आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो श्योर शॉट विल गेट अ करेक्ट आंसर। ओके, चलो। तो अपने को क्या करना है, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द एडजस्टमेंट्स एंड द ट्रायल बैलेंस, विल ड्रॉ द फॉर्मेट taking two pages facing each other in the copy. Left hand side page में we draw the format of trading and profit and loss account, and right hand side page में we draw the format of balance sheet. Okay, I'm also drawing, you also draw. In the books of Messrs. Gavaskar, Vishwanath and company, अच्छा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देयर विल बी टू columns for amount, inner column, outer column, both on the debit side and on the credit side, as we always do.
डन। यस सर। ओके। तो अपना स्टेप वन क्या था फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में? टू ड्रॉ दी फॉर्मेट। एंड व्हाट इज द अप्रोच स्ट्रेटेजी वी फॉलोड? अगल बगल पेज में लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, एंड राइट हैंड साइड पेज में बैलेंस शीट। अच्छा, ये तो अपने को पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वन सिंगल अकाउंट जिसका अपर पोर्शन इज फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द लोअर पोर्शन इज फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वन सिंगल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका अपर पोर्शन इज फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट, द लोअर पोर्शन इज फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपने को मेंटली दिमाग में ये रख के चलना है कि ऊपर का 40% स्पेस विल बी फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड नीचे का 60% स्पेस विल बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज दिमाग में लेकर चलना है। सो दिस वाज स्टेप वन। स्टेप टू में we shall first give the treatment of adjustments. So one by one, we shall discuss the adjustment and give the treatment of the adjustments in the final accounts. So step टू में एक एक करके अपने को सबसे पहले एडजस्टमेंट्स का, हर एक एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट देना है दो जगह। ठीक है, रेडी? दिस इज स्टेप टू। नाउ adjustment one, depreciate building used for business by 5%। सो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है। ट्रायल बैलेंस ऊपर में दिया हुआ है। कैन यू फाइंड बिल्डिंग? यस, इट इज रुपीज 6 लाख। सो 6 लाख का 5% इज हाउ मच? 30,000 इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट? डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा? वेयर इट विल गो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डेबिट में साइड। टू डेप्रिसिएशन। द सेकेंड ट्रीटमेंट इज बैलेंस शीट के असेट के साइड में यस। बिल्डिंग से लेस डेप्रिसिएशन। तो दो जगह ट्रीटमेंट इसका ऐसे होता है। ठीक है, राइट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लोअर 60% पोर्शन है दैट इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपने क्या कर रहे हैं, ऊपर में 40% स्पेस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़कर नीचे की तरफ इन द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर राइटिंग टू डेप्रिसिएशन on building, outer column 30,000। Next, the second treatment is balance sheet asset side. Building inner column, how much? 6 Sir, lakh? 6 lakh less. Yes, beta. No, sir, I was saying 6 lakh less 30,000. Correct. Absolutely correct. Less 30,000. Then outer column में 5 5 lakh. lakh 70,000. So this 5 lakh 70 is a written down value, book value, written down value, book value. Correct. ठीक है, ये चीज हुआ। अब डन विद दिस एडजस्टमेंट। अब अपने को क्या करना है, ध्यान सुना, एग्जाम में भी
ये चीज फॉलो करना है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो चुका है, बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में है, तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स होते हैं उनका एक ही जगह ट्रीटमेंट होता है। वी जस्ट नीड टू पुट द अमाउंट इन द करेक्ट प्लेस, राइट। सो बिल्डिंग इज इन द ट्रायल बैलेंस, इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट आया बैलेंस शीट के असेट के साइड में 6 लाख रुपीज। सो बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो गया। तो अपने को एग्जाम में क्या करना है, जो जो आइटम्स का ट्रीटमेंट होते जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में उसको टिक भी करना है। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन विल गेट फिल्टर्ड, एज इन कौन सा इंफॉर्मेशन यूज हो गया है, दैट विल गेट फिल्टर्ड। सो बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो गया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में बिल्डिंग को टिक कर देना है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो गया, तो उसको भी टिक कर देना है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर टिप्स which will be very beneficial for the exam. Then next, B, furniture and fixtures by 10%. So we need to depreciate furniture and fixtures by 10%. इसी के साथ one steel table is also furniture, purchased during the year for rupees 14,000 was sold for same price. Same price means was sold for rupees 14,000. So one steel table purchased during the year, यानी ईयर में इसको परचेज भी किया था, करेंट ईयर में ये स्टील टेबल को 14,000 में परचेज भी किया था, एंड साथ में सेम ईयर में सेल भी कर दिया। अंडरस्टूड? सो वन स्टील टेबल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी करेंट ईयर में इसको परचेज किया था 14,000 में, वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस, तो उसी सेम ईयर यानी करेंट ईयर में इसको सेल भी कर दिया फॉर सेम प्राइस 14,000। तो मेरे को बताओ, in this case is there any profit or loss on sale of furniture? Answer No. is no. Why? Because it was purchased Same for amount is 14,000. paid. Correct, same price पे सेल हुआ है, purchased for 14,000, sold for 14,000, and purchase and sale of this steel table took place in the same accounting year. So it took place in the same accounting year. यानी एक तरफ खरीदा वहीं उसको बेच भी दिया। क्लियर? सेम Yes. अकाउंटिंग ईयर में परचेज और सेल दोनों हुआ है। बट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द सेल प्रोसीड्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, फटाफट आना चाहिए। 14,000. 14,000 वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट यानी सेल्स अकाउंट को इंक्रीज कर दिया है या डिक्रीज कर दिया है? क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज एन इनकम, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट कब करते हैं इनकम को, जब इनकम इंक्रीज होता है। यस और नो? Yes. ठीक है। सो क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट यानी इसको सेल्स अकाउंट में ऐड किया है या लेस किया है? Add किया. ऐड किया है, सेल्स को इंक्रीज कर दिया है, तो सेल्स अकाउंट में ये 14,000 का सेल प्रोसीड्स ऐड हो गया है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, सेल्स अकाउंट अपने मेंटेन किस लिए करते हैं? तो फॉर सेल ऑफ गुड्स। गुड्स मींस जिस चीज का हमारा बिजनेस है, राइट। तो सेल्स अकाउंट वी मेंटेन फॉर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स यानी जिस चीज का हमारा बिजनेस है, तो उसको जब सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट में वो डाल देते हैं। तो सेल्स अकाउंट इज मेंटेन फॉर सेल ऑफ गुड्स, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। बट इधर में क्या सेल हुआ है? स्टील टेबल विच इज अ फर्नीचर, which is not goods, it is a furniture.
नॉट गुड्स. गुड्स मीन्स जिस चीज का हमारा बिजनेस है, गुड्स फॉर रीसेल. सो इधर में सेल स्टील टेबलवेयर विच इज द फर्नीचर. तो इसका एंट्री तो फर्नीचर अकाउंट, इसका एंट्री फर्नीचर अकाउंट को इफेक्ट करना चाहिए था, ये सोनो. Yes, sir. ठीक है, बट अकाउंटेंट ने क्या किया, इसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट यानी सेल्स अकाउंट में ऐड इंक्रीज कर दिया. जबकि सेल्स अकाउंट मेंटेन किस लिए होता है? फॉर सेल ऑफ गुड्स, जिस चीज का हमारा बिजनेस है. तो अकाउंटेंट ने रॉन्ग किया है, बोला हुआ भी क्वेश्चन में रॉन्गली क्रेडिटेड. तो अकाउंटेंट ने रॉन्ग किया, गलत किया. तो अकाउंटेंट अपना भूल को सुधारेगा, सेल्स को क्या करेगा, ऐड या लेस. Less. लेस. एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट से 14,000 लेस कर देगा. एंड इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? माइंड इट, ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट से जिसका दो जगह इफेक्ट आएगा. फर्नीचर. फर्नीचर से क्या करोगे आप इसको? लेस. लेस करेंगे. लेस. फर्नीचर से क्या करोगे आप इसको? लेस करोगे. बिकॉज फर्नीचर सेल हुआ है, तो फर्नीचर से ये लेस होना चाहिए था. तो फर्नीचर से अपने इसको लेस कर देंगे. अच्छा, कैन यू टेल मी the rectification entry for this error? Rectification entry for this error. Sales account debit to furniture account. Pitch perfect. Pitch perfect. सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. तो सेल्स अकाउंट डेबिट यानी सेल्स अकाउंट डिक्रीज, Furniture फर्नीचर account. अकाउंट क्रेडिट यानी फर्नीचर अकाउंट डिक्रीज. तो इसका दो जगह इफेक्ट क्या आएगा? सेल्स से अपने 14,000 लेस करेंगे एंड फर्नीचर से भी 14,000 लेस करना है. सेल्स अकाउंट कहाँ आता है? फाइनल अकाउंट्स में. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई सेल से लेस करेंगे 14,000. फर्नीचर अकाउंट कहाँ आता है फाइनल अकाउंट्स में? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट के असेट के साइड में फर्नीचर से लेस करेंगे 14,000. राइट. Yes, sir. लेस करने के बाद वी शैल गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ फर्नीचर, जिस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है. 14,000 लेस करने के बाद वी शैल गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, जिसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. एंड डेप्रिसिएशन का दो जगह इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंड बैलेंस शीट में फर्नीचर से लेस कर देंगे. क्लियर? जैसा कि हमने बिल्डिंग के केस में किया था फॉर डेप्रिसिएशन. ओके, चलो करते हैं. अच्छा देखो, सेल्स कितने अमाउंट का है? ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है सेल्स 23 लाख 23 lakh. एंड फर्नीचर. 14,000 का था. अरे यार, हाँ. ट्रायल Oh, sorry, बैलेंस में sorry. Sorry, sorry. 2,14,000. सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स 23 लाख, इनर कॉलम में लेस सेल ऑफ फर्नीचर what was the amount? 14,000. Yes, sir. Okay, is funny. 14,000. करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है एक बार के लिए, क्योंकि अभी हम सेल्स अकाउंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं. तो एक बार के लिए सेल्स को ऐसे ही छोड़ देना है. बाद में इसके साथ अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ तो उसका इफेक्ट दे देंगे, अदरवाइज इसको क्लोज करके लाइन ड्रॉ करके आउटर कॉलम में इसका फाइनल अमाउंट लिख देंगे. तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहे बिकॉज अभी हम फर्नीचर के एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ये सारी चीजों को याद रखना एग्जाम में भी. ठीक है, तो तुरंत इसको लाइन ड्रॉ करके फाइनल अमाउंट नहीं लिख रहे हैं.
फर्नीचर का कितना था? 2,14,000। 14. फर्नीचर एंड पिक्चर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखेंगे अपने। लेस सेल ऑफ फर्नीचर 14,000 लेस करके you get 2 lakh which is the final balance WDV जिस पर अपने 10% depreciation कितना आ रहा है? 20,000। हम्म 10% depreciation चार्ज करेंगे 20,000 depreciation less। एंड इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक उधर जिधर अपने डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का अमाउंट को लिखे 20,000। सर एक क्वेश्चन था। पूछो पूछो। सर जैसे आपने अभी लिखा फुल स्टेटमेंट देखी, टू बिल्डिंग और टू डेप्रिसिएशन बाय बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन बाय फर्नीचर। सर हम लोग डेप्रिसिएशन एक हेडिंग देके उसकी सब हेडिंग में लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्चर्स का WDV इज 1,80,000। नेक्स्ट, अब जैसे ही फर्नीचर देखो ट्रीटमेंट हो गया तो वैसे इसको टिक कर देंगे। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स का लेजर बैलेंस है उन सबका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स हैं उन सबका एक जगह ट्रीटमेंट होगा। तो जैसे जैसे अपना ट्रीटमेंट हम लोग ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं उसको टिक करते जाना है। एग्जाम में भी ऐसे करोगे, क्वेश्चन पेपर में टिक कर देना है। तो सेल्स का इंफॉर्मेशन यूज हो गया तो टिक कर दिया। देन ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%। ऑफिस इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है बाय 15%। देन परचेज ऑफ अ टाइपराइटर इज ऑल्सो एन ऑफिस इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹40,000। सो एक टाइपराइटर परचेज किए थे करेंट ईयर में फॉर ₹40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस। डेबिटेड टू परचेजेस मींस व्हाट? परचेजेस एक्सपेंस है, तो अगर वो डेबिट हुआ है यानी परचेजेस इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. डिक्रीज। Purchases decrease. What is the modern rule of debit and credit for an expense? Increase debit, decrease credit. यही है ना? Modern rules of debit and credit for an expense account. Tell me. Increase debit, decrease credit. इस पॉइंट पर आकर ये सारे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। कोई बात नहीं, हुआ है तो वी शैल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सो एक्सपेंसेस के लिए रूल इज इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेज अगर डेबिट हुआ है इसका मतलब परचेज इंक्रीज इंक्रीज। हुआ है, यानी परचेज में ये 40,000 इंक्रीज यानी ऐड। ऐड हुआ है। परचेज अकाउंट अपने मेंटेन किस लिए करते हैं? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, वो गुड्स जो अपने सेल करनेंगे। So purchase account is maintained for purchase of goods which we are to sell. But इधर में क्या परचेज हुआ है? टाइपराइटर। एंड परचेज अकाउंट इज मेंटेन फॉर परचेज ऑफ गुड्स। इधर में क्या परचेज हुआ? परचेज ऑफ टाइपराइटर विच इज एन ऑफिस इक्विपमेंट, नॉट गुड्स फॉर रीसेल। तो परचेज ऑफ टाइपराइटर शुड बी एडेड टू ऑफिस इक्विपमेंट
ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज होना चाहिए था, राइट, डेबिट, बट इसको क्या किया, परचेजेस अकाउंट में डेबिट इंस्टेड ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज एक्सपेंस से डेबिट हुआ यानी इंक्रीज, तो 40,000 परचेजेस अकाउंट में ऐड कर दिया है। परचेजेस अकाउंट इज मेंटेन फॉर परचेज ऑफ गुड्स, वो गुड्स जो सेल करेंगे आगे, बट इधर में परचेज टाइपराइटर हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज हुआ है, जो कि परचेजेस अकाउंट में ऐड हो गया। तो रेक्टिफाई करने के लिए व्हाट शुड वी डू, टेल मी। परचेजेस से 40,000 को क्या करोगे, ऐड या लेस, लेस परचेजेस अकाउंट परचेजेस क्रेडिट लेस, Purchase less. परचेजेस Purchase से less. लेस। एंड इसका दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट है, Office and equipment account में इंक्रीज हो ऑफिस, जाएगा। करेक्ट। सो इसका दो ट्रीटमेंट क्या है, परचेजेस से लेस, बिकॉज परचेज ऑफ गुड्स नहीं हुआ है, परचेज ऑफ टाइपराइटर हुआ है, यानी परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में इसको ऐड कर देंगे। कैन यू टेल मी द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दिस एरर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ऑफिसेज इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट on debit to टू टाइप सॉरी टू परचेजेस अकाउंट। करेक्ट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो देखो ना, रेक्टिफिकेशन एरर हुआ है, एरर हुआ है तो अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्री का इफेक्ट देना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट मतलब ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इंक्रीज, तो 40,000 ऑफिस इक्विपमेंट के साथ ऐड कर देंगे। टू परचेजेस अकाउंट यानी परचेजेस अकाउंट डिक्रीज, तो परचेजेस से 40,000 लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया। हम लोग ये समझे कि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री का इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिया जा रहा है। द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एरर हुआ है तो रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और यही रेक्टिफिकेशन एंट्री का अपने फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट दे रहे हैं, कैसे इफेक्ट दे रहे हैं। एंट्री इज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट इंक्रीज डेबिट, तो ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड कर रहे हैं एंड परचेजेस से लेस कर रहे हैं। क्लियर, ओके। परचेजेस आता कहां पर है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट के असेट के साइड में। सो परचेजेस का अमाउंट इज 14 लाख दिखाई दे रहा है अपने को, एंड ऑफिस इक्विपमेंट इज 1,60,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऊपर का एक लाइन हमेशा ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ देना, बिकॉज अगर ओपनिंग स्टॉक हुआ दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो परचेजेस के ऊपर आता है, सबसे पहले वही आता है टू ओपनिंग स्टॉक। तो उसके लिए एक लाइन हमेशा छोड़ देना, ये चीज भूलना मत। सो टू परचेजेस, परचेजेस कितना है, 14 लाख, 14 लाख से लेस करेंगे परचेज ऑफ टाइपराइटर, हाउ मच, बोलो, 40,000। इसको ऐसे ही छोड़ देना भी, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है परचेजेस से रिलेटेड और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अभी तो अपने केवल ऑफिस इक्विपमेंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो बैलेंस शीट के असेट के साइड में ऑफिस इक्विपमेंट, हाउ मच इज अमाउंट, 1 लाख, 40,000। 1,60,000।
then add purchase of typewriter, $40,000. So what is the final balance on which we shall charge depreciation? It is 2 lakh. Yes or no? Yes, sir. ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट सही है ना अपना? देख लो एक बार ट्रायल बैलेंस में। हाँ सर। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है ऑफिस इक्विपमेंट पर? 15%। सो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट तो अपने सीख चुके हैं। सो 2 लाख का 15% इज 30,000। डेप्रिसिएशन लेस कर दो एंड इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। कितना? 30,000. 30,000। बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद रिटन डाउन वैल्यू इज कमिंग टू 1,70,000। नेक्स्ट, मोटर कार बाय 20%। डेप्रिशिएट मोटर कार बाय, अच्छा टिक करना है अपने को, टिक करना भूल नहीं जाना है, अदरवाइज सही नहीं होगा। देयर इज अ पॉसिबल चांस एरर हो जाए। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है क्वेश्चन में उसको टिक करते जाना है, राइट? मेंटेन दिस हैबिट। सो नेक्स्ट, डी में मोटर कार बाय 20%, इजी। मोटर कार, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोटर कार बैलेंस? So you've left it down. हाँ, 2 lakh. 2 lakh। 2 lakh and rate of depreciation is 20%. So balance sheet asset side, motor car inner column 2 lakh less depreciation 20% is 40,000. Written down value 1,60,000. Then इसका दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन, टेल मी, मोटर Motor कार। car. 40%. 40,000, sorry. तो अब इसको भी टिक कर दो। तो आई थिंक एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 कि ए बी सी डी सबका ट्रीटमेंट दो दो जगह देना हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, additional information number 2, value of stock at the close of the year. This is what? Closing stock was rupees 4,40,000। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस हुआ है क्लास में, इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। ट्रायल बैलेंस के बाहर है ये। सो पहला इफेक्ट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सेल के नीचे स्पेस छोड़ देना, बिकॉज हो सकता है सेल से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट्स भी हो, तो सेल के नीचे अपने स्पेस छोड़कर, एग्जाम में भी ये चीज को याद रखना, सेल के नीचे स्पेस छोड़ रहे हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ रहे हैं, छोड़कर लिख रहे हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है।
आउटर कॉलम में ही लिखेंगे 4,40,000 एंड इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। ठीक है। देन 3, additional information number 3, 2 months rent for godown is outstanding. ठीक है। So answer my few questions which are very easy to answer. How many months are there in a year? In a year, how many months? 12. 12 months are there. Here it is given that 2 months rent for godown is outstanding. Outstanding means not yet paid. So tell me for how many months the rent has been paid? 10. 10 months. So 10 months rent paid hai and 2 months rent is outstanding है. Outstanding. अच्छा, outstanding वाला जो information है, where did you find this? In the trial balance or below the trial balance? Below the target. Below the trial balance. Outstanding wala information you found below the trial balance, outside the trial balance. Which means what? Outstanding rent has been recorded in the books or not recorded in the books? Not recorded. Not Not recorded in the book. not recorded in the books. यानी आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री पास नहीं हुआ है. तो आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में नहीं है. अच्छा, ट्रायल बैलेंस में कैन यू फाइंड रेंट फॉर गोडाउन? हाउ मच? 55,000. 55,000. Now tell me, this 55,000 is rent for how many months? 10 months. 10 months. So clear. Very nice. So this rent for godown 55,000 represents rent paid, which is 10 months ka rent. So if 10 months ka rent is 55,000, can we calculate 2 months ka rent? 11,000. 11,000. 5,500 into 2. Correct. So we have applied unitary method. 55,000 into 2 by 10 is 11,000 is outstanding rent. And outstanding expenses का क्या ट्रीटमेंट होता है? एक्सपेंसेस के साथ ऐड करते हैं एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड में शो करते हैं. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देखो, इतना टाइम हमने दिया सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, तो देखो कितना क्विकली एंड फास्ट अपना क्वेश्चन पिकअप हो रहा है. How quickly we can understand the information in the question. So profit and loss account के debit side में rent for godown. Inner column 55,000. Add outstanding rent. Definitely you have to show the calculation. 55,000 into 2 by 10 is 11,000. So rent for the year is 66,000. So बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, अच्छा लाइबिलिटीज के साइड में आएगा तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपने साथ साथ चला रहे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अपने पैरेलली चला रहे,
रन कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज के साइड में तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का इंफॉर्मेशन आता है। तो कैपिटल अकाउंट के लिए अच्छा खासा स्पेस छोड़ देंगे, कम से कम 5 या 6 लाइन। एंड देन नीचे में अपने लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड बाकी सारे लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज के साइड में हमेशा याद रखना, सबसे पहले यू विल लीव सम स्पेस टू शो द कैपिटल अकाउंट। दो चीज अपने को याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऊपर का एक लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ना है, एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के लिए। नेक्स्ट, सो टिक कर रहे हैं अपने, राइट, टिक करते जा रहे हैं। वेर इज रेंट फॉर गोडाउन टू सो डिफ, बोलो बोलो। हम्म, नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। अच्छा, बिजनेस किसका है? गावस्कर का? ये सोनो? यस सर। ओके, तो गावस्कर ने विश्वनाथ से लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ is payable at 12% per annum. This loan was taken on 1st May 2021. अपने कौन से ईयर में है? We are in the year which is ending on 31st March 2022, which means we are in the year 21-22. So this loan was taken in the current year on which date? 1st May 2021. So tell 11 me, months। 2021. So tell me, for how many months? 11। 11 months. 11 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस लगेगा करेंट ईयर में। इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी चार्ज फॉर 11 मंथ्स, है ना। 11 मंथ्स हो गया है लोन लिए हुए, तो करेंट ईयर में 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेट अस सी व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव फॉर द लोन। जैसे लोन फ्रॉम विश्वनाथ, व्हाट इज अमाउंट? 3 लाख। कैन यू कैलकुलेट 11 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ लोन? 3 लाख सर इंटू 33,000। 33,000, 3 लाख इंटू 12% इंटू 11/12, 12। कितना आ रहा है? टेल मी। सो 33। 33,000। 33,000 is the interest expense for the year. Can we find interest on loan from Vishwanath in the trial balance? Here it is. Interest on loan from Vishwanath, 27,000. So in the trial balance, interest on loan from Vishwanath is 27,000. Whereas we have calculated that for the current year, interest expense is 33,000. But in the trial balance, we can see 27,000. So what can we conclude from these two info? 6,000 is outstanding amount to be paid। 6,000 is interest outstanding. So interest outstanding, interest in this case is an expense. Expenses outstanding का दो treatment is expenses के साथ add and balance sheet में liabilities में show करेंगे, correct? यस सर। तो अपने इसके लिए नेक्स्ट पेज में जाकर एक नोट दे देंगे। यू हैव टू गिव अ नोट।
क्लियर? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम 27,000, add outstanding interest. You can also write reference to the note. Then balance sheet के liabilities side में outstanding. Clear? लगे हाथ कि we can also write the amount of loan. Loan from Vishwanath is a liability. So here we can write loan from Vishwanath. 3 lakh. लगे हाथ liabilities में लोन का अमाउंट भी लिख दिया. So loan from Vishwanath टिक कर दो. Interest on loan from Vishwanath टिक कर दो. अच्छा. Now, additional information 5. Provision for bad debts is to be maintained at 5% of debtors. Debtors कितने का है? What is the amount of sundry debtors? Sundry debtors here 8 lakh 60. 8,000. So 8 lakh 60 is the amount of closing balance of sundry debtors is per provision for bad debts. 5% का maintain करना है. 8 lakhs 43,000. 43,000. So this 43,000 is what? Closing The balance, provision. closing balance of provision for bad debts. Yes or no? Closing balance for provision for bad debts. Because 5% अपने किस पर कैलकुलेट किए? On the closing balance of sundry debtors. ईयर के एंड में sundry debtors का closing balance 8 लाख 60 है, जिस पर अपने को 5% for provision for bad debts maintain करना है. यानी 8 लाख 60 का 5% 43,000 प्रोविजन अकाउंट में मेंटेन करना है. मेंटेन मींस इसका क्लोजिंग बैलेंस इज 43,000. सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इज 43,000. इससे ये पता चला. अब देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखो ट्रायल बैलेंस में मिला So 30,000. 30,000. सो बाय डिफॉल्ट ये 30,000 के इट इज दी opening balance of provision. This is the opening balance of provision. So opening balance of provision is 30,000 and closing balance is 43,000. अच्छा मेरे को बैड डेट्स का इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में. बैड डेट्स हियर वी गो 20,000. सो क्वेश्चन में बैड डेट्स 20,000 है. सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट. याद करो डिस्कस किए थे ना अपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट.
Buy balance B by D. I hope you all remember. Opening balance is on the credit side. Buy balance B by D, 30,000. Closing balance is on the debit side. To balance C by D, 43,000. Bad debts कितने हैं? 20,000. Bad debts को provision account में किधर लिखूं? On which side? Debit side. Debit side. Very good. I hope you remember this. We had done examples also on this in the class itself. Yes or no में आंसर करूं? No Yes. और yes? Yes, sir. Hmm. अब बताओ, एक बैलेंसिंग फिगर आएगा ऑन द क्रेडिट साइड. इसको क्या करके लिखना है बताओ? बैलेंसिंग फिगर को क्या करके लिखूं? बाय व्हाट? Profit and loss. प्रॉफिट एंड Yes, sir. लॉस अकाउंट. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,000. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 33,000. Sir, I have a question. Hmm? Sir, how did we get 43,000 for closing the I'll show you. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन sundry debtors. What is the balance of sundry debtors given in the trial balance? 8,60,000. Which is the closing balance of sundry debtors? So 8,60,000 का 5% is 43,000. So we need to maintain 43,000 in the provision. How did we get 43,000? Closing balance of debtors into 5%. So this 43,000 is what? Closing balance of provision also. Closing balance of debtors पर 5% का provision maintain करना है, यानी 43,000 का provision maintain करना है. तो 43,000 है क्या? Provision for bad debts का closing balance. Okay, sir. Clear? अब देखो, ध्यान से सुनना. हाँ, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस ये किधर दिया हुआ था? ट्रायल बैलेंस या एडिशनल इंफॉर्मेशन? ओपनिंग बैलेंस वाज गिवन वेयर? ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन? Trial balance. ट्रायल Trial बैलेंस. balance. तो इसका एक जगह इफेक्ट आ गया. प्रोविजन अकाउंट के बाई साइड में वी हैव प्रिपेयर्ड प्रोविजन अकाउंट. नेक्स्ट, बैड डेट्स का 20,000 वाज गिवन वेयर? ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन? Trial balance. ट्रायल बैलेंस. तो उसका भी एक जगह इफेक्ट आ गया प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में. क्लियर है ना? तो अपने टिक कर सकते हैं. क्लियर? क्वेश्चन में बैड डेट्स को टिक करो. सॉरी, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी टिक कर दो. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस 43,000, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ दिया हुआ था? ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में?
43,000 कहाँ से मिला अपने को? सर बाहर से। ट्रायल बैलेंस के, करेक्ट। सो इसका दो जगह ट्रीटमेंट आएगा। तो एक जगह ट्रीटमेंट तो ये हो गया कि प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस C/D करके 43,000 आ गया। तो वन ट्रीटमेंट डन, वन टाइम ट्रीटमेंट डन। सेकेंड ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे? असेट के साइड में सन्ड्री डेटर्स 8,60,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाउ मच? 8,17,000। क्लियर है ना? देन नेक्स्ट देखो, प्रोविजन अकाउंट में ये जो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका भी दो जगह ट्रीटमेंट आ गया। एक प्रोविजन अकाउंट के बाई साइड में, क्रेडिट साइड में, एंड दूसरा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो 33,000 का भी दो जगह ट्रीटमेंट आ गया। क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो प्रोविजन डन। देन इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसमें 40,000 is paid towards proprietor's life insurance policy. So this is proprietor's life insurance policy. So this is with ड्राइंग drawings. इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 55,000। 55,000 में 40,000 is for proprietor's life insurance, which is drawings. तो अपने 40,000 को 55 में से लेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस कितना है? 55 माइनस 40, 55,000 minus 40,000, 15,000, because 55,000 में से 40,000 is paid for proprietor's life insurance, which is drawings, not an expense for the business, separate entity concept. ठीक है? सो अपन क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम से 40,000 लेस करना है एंड ड्रॉइंग्स में ऐड करना है। ऐड कर देना है। तो इसका दो जगह इफेक्ट ऐसे आ जाएगा। ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है? सर 1 लाख 20। 1,20,000। ठीक है, चलो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम किधर आता है? हमेशा नोट का रेफरेंस दे देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 लेस पेड फॉर प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस 40,000 विच इज ड्रॉइंग्स। इसको ऐसे ही छोड़ दो एक बार। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में इसका नेट अमाउंट लिख रहे, बिकॉज आपने देखा होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है जो कि हमने अभी तक उसको पढ़ा नहीं। तो इसलिए इनर कॉलम में नेट अमाउंट को लिख रहे, बिकॉज लग रहा है देयर विल बी मोर एडजस्टमेंट्स विथ रिलेटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ड्राइंग से इसको लेस करेंगे। ड्राइंग्स किधर आएगा? बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं। तो लाइबिलिटीज साइड में पहले तो कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग्स को लेस करके दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है, कैपिटल कितना, ये रहा 16,20,000, 16,20,000। तो 16,20,000 is the amount of capital. इससे अपने ड्राइंग्स को लेस करते हैं। ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, अभी देखा था ना 1,20,000। 1,20,000 इसके साथ ये 40,000 भी ऐड 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000 आ रहा है। सो 1,60,000 अपने लेस करेंगे। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। सेम क्या दिया हुआ है देखो, सेम इंफॉर्मेशन में आगे क्या लिखा हुआ है, सेम पॉइंट में, एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस, कैन यू टेल मी बैलेंस अमाउंट? ये 40,000 का एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस 15,000 15,000, and the balance of the insurance charges cover the period 1st April 2021 से लेकर 30th June 2022। सो ये जो 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, चार्जेस है, दिस कवर्स द पीरियड 1st April 2021 से लेकर 30th June 2022। सो इट इज कवरिंग हाउ मेनी मंथ्स? 3 months का प्रीपेड भी है। करेक्ट। In total, this 15,000 is covering how many months? 1st April से 15 लेकर 15 months। अपना ईयर एंड हो जाता है 31st March 2022। 12 मंथ्स अपना एंड हो जाता है 31st March 2022। तो इसके बाद भी till 30th June 2022 the insurance premium is paid, यानी 3 months का as you said is prepaid। Can you tell me the amount of prepaid insurance? sir 1 minute 15,000 sir is for 1,000 पर मंथ हुआ तो 3,000 हुआ ना। 3,000, करेक्ट। रिद्धि प्रियांशु को भी क्लियर है 3,000? हाँ सर। Yes, sir. सो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, एक्सपेंसेस से लेस लेस। करते हैं। सो कैलकुलेशन शो कर दो, 15,000 इंटू 3/12, 3/15 सॉरी, 15,000 is for 15 months, सो 3 months का 3,000 लेस करके देखो आउटर कॉलम में कितना आ रहा है, 12,000 12,000। तो वो 12 मंथ्स का है, यानी करेंट ईयर का खर्चा आ गया। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के असेट के साइड में, $3,000 बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। डन, टिक कर दो, क्वेश्चन में टिक करो। ट्रायल बैलेंस में भी देखो, कैपिटल लिख चुके अपने, ड्राइंग्स भी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया, राइट। तो हमने स्टेप 2 में क्या क्या सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो दो जगह ट्रीटमेंट दिया है, एंड
साथ साथ जो जो इंफॉर्मेशन अपना ट्रायल बैलेंस से भी यूज हो रहा था उसको क्वेश्चन में टिक करते गए। अभी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो जगह ट्रीटमेंट देना हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप 3 में अपने क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो बचा हुआ आइटम्स है, बचा हुआ आइटम्स मींस जिसमें हमने टिक नहीं मारा, टिक मार के हमने क्या किया, फिल्टर कर दिया। तो पता चल जाएगा कौन सा इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। जिसमें टिक नहीं है उसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में नहीं हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में जिन आइटम्स में टिक नहीं है उनका ट्रीटमेंट देना है, बिकॉज जिनमें टिक है उनका ट्रीटमेंट देना हो चुका है, तो जिनमें टिक नहीं उनका ट्रीटमेंट देना है। एंड ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स होते हैं उनका एक ही जगह ट्रीटमेंट देते हैं। तो करना क्या है नटशेल में, स्टेप 3 में ट्रायल बैलेंस में जितने भी बचे कुछ आइटम है जिनमें टिक नहीं है उनका ट्रीटमेंट एक जगह दे देना है। सो देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा, सन्डी डेटर्स में टिक नहीं मारने मारे थे, भूल गए थे अपने। सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोलो। बैलेंस शीट असेट सर साइड। ऐसे। अभी तो इजी हो गया सब। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 6,20,000। टिक देते चलना है, जो जो इंफॉर्मेशन यूज होते जा रहे टिक देते चलना है। दिस इज ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इसके लिए अपने स्पेस छोड़े थे। तो ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट। कितना आसान हो गया ना टिक मारने से, क्या और इन्फॉर्मेशन इज फिल्टर्ड, पता चल जा रहा है किसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो उसका एक जगह ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट, सन्जी क्रेडिटर्स 4,30,000। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। देन परचेजेस रिटर्न 26,000, परचेजेस से लेस कर देंगे। देखो इसीलिए अपने इधर में लाइन ड्रॉ नहीं किए थे, वी वेटेड कि और कोई ट्रीटमेंट होगा तो, मतलब और कोई इंफॉर्मेशन जिसका ट्रीटमेंट इधर हो सकता है। परचेजेस रिटर्न 26,000 लेस। अब अपने लाइन ड्रॉ करके फाइनल अमाउंट ऑर्डर कॉलम में लिख सकते हैं। 13,34,000। देन सेल्स रिटर्न 42,000 सेल से लेस करेंगे।
Next. Salaries 1,10,000 PL debit side. Rent and taxes 21,000 PL debit side. Discount allowed 24,000 PL debit side. तीनों आइटम्स को PL डेबिट साइड में लिखो. Two salaries. Two rent and taxes. $27,000. Two discount allowed 24,000. Rent and taxes is 21,000. Okay. So rent and taxes 21, discount allowed 24. Okay, correct Abby? Chalo next. Discount received is income, profit and loss account, credit side 16,000. So profit and loss account, credit side में by discount received, profit and loss account credit side. How much is the amount? 16,000. 16,000. Okay. Next. Spread on purchases, where it will go? Trading account, debit side 12,000. Spread is like carriage inward. So trading account, debit side. Spread on purchases. ठीक है. Then carriage outward is incurred for sale of goods. So PL debit side 20,000. चेक कर दो. Carriage outward PL debit side 20,000. Carriage inward always on trading debit side. Carriage outward profit and loss debit side. To carriage outward 20,000. Next. Printing and stationery 18,000. Electricity charges 22,000. General office expenses 30,000. Bank charges 16,000. Motor car expenses 36,000. All these items will come on the debit side of profit and loss account. तो इसको एक एक करके लिखो. क्या क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी to electricity charges
to general office expenses, to bank charges, to motor car expenses, done. Now check ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम बचा नहीं है, सारा आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, यानी वी हैव गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ all the information in the trial balance as well as in the additional information, यानी क्वेश्चन का पूरा यूज हो चुका है, तो क्वेश्चन का अब कोई काम नहीं है। सिंपली अब अपने क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ। पहले क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है निकालना है। फटाफट करो। ये जो प्रोसेस है ना, इसको फॉलो करने से हमेशा योर आंसर विल बी करेक्ट इन द एग्जाम। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज कमिंग टू 7,18,000। इसको अपने ब्रॉट डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड। 7,18,000 अभी नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करके नेट प्रॉफिट, $1,73,000 इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड। We add the amount of net profit to the capital account. So बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल में लिखो ऐड नेट प्रॉफिट।
Then calculate the final closing balance of capital. 16,33,000. अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, liabilities side and asset side, total and check. Balance sheet tally, yes or no? So total on both the side is 23,80,000. Yes or no? Clear है? हुआ टोटल? Please respond. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So did you found this approach more productive? Yes, sir. है ना? आपने बिकॉज क्लास 11 में क्या सीखे थे, सर ने क्या सिखाया होगा कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, ऐसा कुछ? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. अभी साथ साथ पैरेलली दोनों को प्रिपेयर करने से सम्स क्विकली सॉल्व हो जा रहे हैं एंड करेक्ट हो रहे हैं. और हमने एक चीज और सीखा कि सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो दो जगह ट्रीटमेंट एंड देन ट्रीटमेंट देते टाइम सारे को जो क्वेश्चन में टिक मारते जाना है. इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाएगा एंड देन लास्ट में ट्रायल बैलेंस में जितने बचे हुए आइटम्स हैं उनका एक जगह ट्रीटमेंट देना है. सो दिस इज वेरी फास्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर? so how many marks does this come for? You can expect that to you. For that you have to see the question paper. इसका मतलब क्वेश्चन पेपर देखना हुआ नहीं. Why should I tell you? सर क्वेश्चन पेपर देखना नहीं हुआ है क्योंकि एमटीपीज आरटीपीज ही खत्म नहीं हो कोई रहा है ना. कोई फिक्स नहीं है. 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 12 मार्क्स का भी आ सकता है. कोई फिक्स नहीं है. ठीक है. तो क्वेश्चन पेपर देखो तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज द पैटर्न दे फॉलो. समटाइम्स इट इज टेस्टेड फॉर 10 मार्क्स, समटाइम्स फॉर 12 मार्क्स, लाइक दिस. ठीक है. समटाइम्स फॉर 16 मार्क्स. ओके. ठीक है. चलो देन, सो फार सो गुड. नेक्स्ट क्लास एक और सम बचा हुआ है, एक और सम कंप्लीट करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एक मतलब जो डिफिकल्ट वंस है उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको घर में एमटीपीज आरटीपीज एंड क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो. ओके. समझ में आज का डिस्कशन? साउंड्स गुड? Yes, यस. sir. प्रोडक्टिव रहा? ओके. Yes, sir. चलो देन, थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर. बाय. Thank you, sir.